سب سے پہلے بات کریں گے بہاولپور مسلسل دوسرے دن بھی پاکستان کا آلودہ ترین شہر رہا۔ دھوپ نکلنے کے باوجود ماحولیاتی آلودگی برقرار، شہر کی فضا سانس لینے کے لیے آلودہ قرار۔ نوابوں کے شہر میں فضائی آلودگی کے ڈیرے۔ بہاولپور مسلسل دوسرے روز بھی پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا۔ دھوپ نکلنے کے باوجود صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 480، دوپہر 455 اور شام کے اوقات میں 410 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں نے سموگ کو خطرہ قرار دے دیا۔ مال بیمار تھے بندے بیمار تھے بہت متاثر کرنے پہ صحیح کیا نہیں ہے صحیح کتاب میں کتا ہونے سنید ہی تو آ رہی ہے بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی ویخ نہیں رہے ہیں بھی کیویں کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں منسوئی بارشاں وغیرہ کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی چل رہی ہے نظام، لیکن سانو نظر نہیں آ رہی ہے کوئی کہ اس طرح کا کر رہے ہوں یا کوئی نظر آ رہی ہو سانو۔ ماسک لگانا تو اچھا ہے، کوشش تو کریں کہ اپنی حفاظت کریں، اگر حفاظت نہیں کریں گے تو بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ بہاولپور کی فضا عالمی معیار سے 60 درجے زیادہ مضر صحت ہے۔ فضا میں معلق زہریلی کثافتوں کی مقدار صبح کے اوقات میں 300، دوپہر 280 جبکہ شام میں 256 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسموک جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو افیکٹ پڑ رہا ہے وہ ٹریفک کی وجہ سے ہے۔ ٹریفک کا جو دھواں ہے جس کی وجہ سے جو ہے اسموک بہت بڑھ رہی ہے۔ یہ سب سے زیادہ تو جو اس کی ذمہ دار ہے وہ ہم عوام ہی ہیں کہ ہم نے جو درخت کاٹے ہیں، جو زرعی زمینوں کو ختم کیا، اس میں سارا کردار ہمارا ہی ہے، اور اگر ہم درخت نہیں لگائیں گے تو آنے والے سالوں میں یہ موسم جو ہے یہ مزید سخت ہوتا جائے گا اور ہمارے لیے یہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بہاولپور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 70 سموگ متاثرین مختلف ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے۔ دوسری طرف طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک لگانے اور غیر ضروری باہر نہ نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ اب بات کریں گے جنوبی پنجاب میں اسموگ کا راج برقرار۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر اور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا نمبر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 402 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ اس پر مزید بات کریں گے، وہ نباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیون بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اگر بات کریں ملتان شہر سے اسموگ کا راج جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملتان شہر میں اسموگ کا راج برقرار ہے۔ ملتان شہر سے اسموگ کے ڈیرے نہیں ہٹ رہے، اور شہر میں اگر بات کریں تو موجودہ صورتحال جو ہے اس میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 402 پوائنٹس تک ریکارڈ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم بات کریں ملتان کنٹونمنٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے تو ملتان کنٹونمنٹ میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 372 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خانیوال روڈ پر اگر بات کریں تو وہاں پر جو ایئر کوالٹی انڈیکس 330 پوائنٹس تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ساتھ WWF پاکستان ملتان آفس کے قریب جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 623 پوائنٹس تک جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملتان جو ہے اس وقت ملک بھر میں اگر ہم بات کریں تو سر فہرست ہے آلودہ ترین شہروں میں، اور اسموگ جو ہے ملتان شہر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے حکومت پنجاب نے لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کروایا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو SOPs کی جب وائلیشن ہو رہی تھی، اب تو جو ہے انتظامیہ نے لاک ڈاؤن والی جو صورتحال ہے اسے تقریباً ختم کر دیا ہے، کیونکہ ریسٹورنٹس کے اوقاف کی اگر ہم بات کریں، ریسٹورنٹ کے جو اوقات ہیں اس میں 4 بجے جو ڈائن ان کا ٹائم مقرر تھا وہ اب 10 بجے بڑھا کر 10 بجے کر دیا گیا ہے، اور ٹیک اوے جو ہے وہ ساری رات میسر ہوگا۔ جبکہ ہم بات کریں تو ملتان اور لاہور میں بھی کچھ حد تک جو ہے سموگ ابھی تک جانے کا نام نہیں لے رہی۔ باقی اضلاع میں جو ہے کافی حد تک ہمیں کمی دیکھی گئی، مگر ملتان شہر میں جو ہے سموگ جو کی توں ہے، اور اس حوالے سے ہم اگر ویدر کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو یہاں پر جو ویدر ہے ملتان شہر کا ابھی موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ جو ہے 17 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج دن بھر میں جو ہے درجہ حرارت کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 15 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا، اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 25 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس تمام تر صورتحال میں جو ہے ابھی ملتان شہر میں جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں تو ملتان شہر میں ہمیں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے کچھ پابندیاں ختم ہوئی ہیں حکومت کی جانب سے ریسٹورنٹس کو لے کر، تو وہیں شہری جو ہیں اس وقت کثیر تعداد میں ریسٹورنٹس کا رخ کر رہے ہیں، اور سموگ کے خطرات سے جو ہے ڈائریکٹلی ان کا لائیو انٹریکشن ہو رہا ہے، کیونکہ جب شہری باہر نکلتے ہیں سموگ جو ہے انہیں کافی حد تک متاثر بھی کر رہی ہے، اور نشتر ہسپتال میں جو ہے سموگ سینٹر جو قائم کیے گئے تو سموگ سینٹر میں جو ہے کئی مریض جو ہیں اس وقت زیر علاج بھی ہیں، اور بڑی کیسز میں جو ہے رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جو ہے
मुल्तान इंतज़ामिया जो है स्मोक से निपटने के लिए इकदाम तो कर रही है, मगर हमने देखा कि मुल्तान शहर में जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं और दीगर स्मोक का बाइस बनने वाली चीज़ें हैं अभी तक जो है वैसे की वैसे अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में है, जबकि हुकूमत ने कुछ दिनों के लिए जो है उन पर उनके फंक्शनिंग पर पाबंदी भी लगाई थी। मगर हुकूमती अहकाम तो आप जानते ही हैं कि मुल्तान शहर में जिस तरह से हमने पहले भी रिपोर्ट किया रोई पर कि जिस तरह से लॉकडाउन भी जब लगा तो लॉकडाउन की भी जो सूरत हाल है उसमें अभी हमने देखा टोटली वायलेशन हो रही थी। मार्केट्स जो ओपन तकरीबन 4 बजे तक रहनी थी वो रात गए तक मार्केट्स ओपन थी, जिसकी वजह से अभी जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्तान शहर में, मुल्तान में हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमें ख़राब दिखाई दे रहा है। सुबह के वक्त की अगर हम बात करें तो सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया था। दिन में जो है तकरीबन 450 पॉइंट्स तक भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है गया, मगर अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 402 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ जो है मुल्तान शहर से जो है स्मोक के डेरे नहीं हट रहे, मुल्तान शहर में स्मोक जो है बरकरार है और इस सूरत हाल में जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक शहरियों को मसाइल का भी सामना है। जी, शहरियों को काफ़ी हद तक मसाइल का सामना है। नवाज हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में मतला साफ लेकिन स्मोक के असरात कम न हुए, सांस, दिल और आंखों की बीमारियां बढ़ गईं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। मुल्तान गुज़िश्ता दिनों माहौलियाती आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। इस दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार ना करना शहरियों को महंगा पड़ गया। सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज दमा, आंखों और दिल के मरीजों का डाटा रोई ने हासिल कर लिया। दमा के 3248, दिल के 855, आंखों के 150 और फेफड़ों के इमरजेंसी वार्ड में 422 मरीज रिपोर्ट हुए। स्मोक की जो सूरत हाल है इसमें पेशेंट्स में इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पे जो ये अपना दमे के मरीज़ हैं, फिर कुछ दिल के मरीज़ हैं। चूँकि इसमें सांस का मसला होता है तो दिल का मसला भी हो जाता है और आँखों में भी एलर्जी होती है, वो भी कुछ 150 पेशेंट रिपोर्ट हुआ है हमारे पास। तो इसमें गुजारिश सबसे जो अहम है वो ये है कि बाहर अगर निकलें तो ऐनक इस्तेमाल करें। दूसरा, जो दमे के पेशेंट हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर रियाज अहमद मुस्तोई का कहना था कि शहरी गैर जरूरी बाहर ना निकलें, अपने बच्चों को घरों में रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और आंखों को बार बार धोएं। हमारे स्मोक डेस्क जो है, हमारे शहबाज शरीफ अस्पताल हो गया, साउथ सिटी अस्पताल है, DHQ जलालपुर पीर वाला THQ शुजाबाद और RHCs पे और तकरीबन हर BHU पे हमने बना दिए हैं। तो जिन लोगों को कोई अल्लाह ना करे मसला होता है तो वहाँ अस्पताल में जाके कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह उनका इलाज किया जाएगा। CEO हेल्थ डॉक्टर रियाज अहमद का मजीद कहना था कि अस्पतालों में स्मोक काउंटर कायम हैं, डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद हैं। शहरी स्मोक से खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में स्मोक के बायस बीमारियों में इजाफा, स्मोक और बदलते मौसम की वजह से शहरी गले की खराबी, सांस और जुकाम से मुतासर होने लगे। ऐसे में मरहबा की तरफ से मुल्तान टी चौक पर शहरियों की मरहबा जुशांदा से तवाज़ो की गई। मुल्तान में स्मोक बनी शहरियों की जान का रोग, स्मोक और बदलते मौसम के बायस शहरी गले की खराबी, जुकाम और सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे। शहरियों को सेहतमंद रखने के हवाले से मरहबा का अहसन इकदाम। मुल्तान के इलाके टी चौक में मरहबा की तरफ से मरहबा फ्लोट सजाया गया। पंजाब में बहुत स्मोक है, ठीक है, बहुत पोल्यूशन है, डस्ट है, गले की बीमारियां है, मैदे की है, जिसकी वजह से ना हम तमाम पब्लिक को जो है ना जुशांदे की और शहद की फ्री टेस्ट ट्रायल करवा रहे हैं ताकि लोग सेहतमंद रहे और ये नेचुरल चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आए। मरहबा फ्लोट पर शहरियों की मरहबा जोशांदा और मरहबा शहद से तवाज़ु की गई। गर्मा गर्म मरहबा जोशांदा में खालिस मरहबा शहद मिलाकर शहरियों को पिलाया गया। मरहबा कंपनी के स्टाफ का कहना था कि मुख्तलिफ शहरों में मरहबा की तरफ से शहरियों को मुफ्त जोशांदा पिलाने का इकदाम जारी है ताकि शहरी खालिस अशिया का इस्तेमाल करके सेहतमंद रहें। आज मरहबा की जोशांदा टेस्ट एक्टिविटी है, मुल्तान में आज इसका पहला दिन है और हम मुल्तान में 4 दिन ये एक्टिविटी करेंगे मुल्तान के डिफरेंट इलाकों में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे मुल्क में स्मोक की बहुत शदीद कंडीशन है, बड़ी सवेयर कंडीशन है और हम लोग स्मोक की वजह से लोगों को स्पेशली जोशांदा टेस्ट करवा रहे हैं। मरहबा की तरफ से जोशांदा और खाली शहद भी स्टॉल पर सजाए गए। शहरियों को इस मौके पर खसूसी डिस्काउंट भी फराहम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन, तामीराती कामों पर 24 नवंबर तक पाबंदी है। काम बंद होने से मजदूर तबका बेरोजगार हो गया।
मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इंतजामिया ने तामीराती कामों पर 24 नवंबर तक पाबंदी आयद कर दी। तामीराती काम बंद होने से मजदूर तबके की मुश्किलात में इजाफा हो गया। अगर कारोबार बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? हम तो इधर से रोटी खाते हैं, ये कमा कर रोटी खाते हैं। ये हुकूमत का बहुत हमसे इंसाफ ही है। मजदूरों का कहना है कि इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इतने दिन काम नहीं मिलेगा तो 2 वक्त रोटी कैसे खाएंगे? जी बिल्कुल, कारोबार है नहीं, लॉकडाउन किया हुआ है, कारोबार नहीं है बिल्कुल। सारा दिन आते हैं इधर खड़ो खड़ो के चले जाते हैं। जो कुछ चक्कर मिलता ही है तो ट्रैफिक वाले चलान कर देते हैं। क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए, कारोबार है ही नहीं। मजदूरों का मजीद कहना है कि रोज मेहनत मुशक्कत करके बच्चों का पेट पालते हैं। स्मोक SOP का मालूम नहीं मगर महंगाई हमें जरूर मार देगी। कैमरामैन हसीब के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मियावाली में महकमे तालीम भी स्मोक की रोकथाम के लिए मुतहरिक। CEO एजुकेशन अहमद जार कहते हैं कि स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। मियावाली में महकमा तालीम ने स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। CEO एजुकेशन अहमद जार कहते हैं कोई भी बच्चा और उस्ताद मास्क के बगैर स्कूलों में दाखिल नहीं हो सकेगा। स्कूलों के सहन में पानी का छिड़काव किया जाएगा, कच्ची जगह को पक्का करने की कोशिश की जाएगी, खाली एरियाज में पौधे और घास लगाई जाएगी, गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। हमने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की बुनियाद पर पहला फैसला ये किया है कि जैसे बच्चे आएंगे तो सब बच्चों के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। दूसरा, हमारे स्कूलों के अंदर जितने भी जहाँ पे कच्ची जगह है उसके लिए हमने ग्रे और ग्रीन का जो है तस्वर हमारे सेक्रेटरी साहब ने दिया था। तो हम या तो उसको ग्रे में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ग्रे एरियाज हैं वहाँ पे हम घास लगा रहे हैं, या घास अगर नहीं भी लग सकती तो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। CEO एजुकेशन अहमद जार का कहना था कि बॉर्डर के करीब कायम स्कूलों की सिक्योरिटी के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी इकदाम को मुकम्मल किया जा सके, क्योंकि बॉर्डर के करीब कायम स्कूलों के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल चुके हैं। इसके साथ साथ आपकी यहाँ मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ मियाँ वाली जो बॉर्डर एरियाज़ क्योंकि लगते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं। तो उसकी वजह से कल हमने एक मीटिंग भी रखी है और दोबारा से पुलिस की तरफ से जो है हमारा सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो भी शुरू किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम बच्चों की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए वो सिक्योरिटी ऑडिट वाली टीमें भी आ रही हैं और कल हम भी अपने स्कूलों के हेड्स को बुला रहे हैं। CEO एजुकेशन का मजीद कहना था कि महकमा तालीम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियावाली। अब बात करेंगे मुल्तान में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3000 रुपये का इजाफा। 24 कैरेट सोना 2,74,000 रुपये फी तोला हो गया। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 2,51,000 रुपये पर पहुंच गई। 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 23,500 रुपये हो गई, जबकि 22 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत 21,500 रुपये हो गई। तरक्याती मंसूबे नजरअंदाज फंड्स के अदम दस्तियाबी के बायस मियावाली में फॉरेंसिक लैब का तामीराती काम ठप हो गया। 7 माह गुजर जाने के बाद भी मंसूबा नामुकम्मल हो सका। मियावाली में फॉरेंसिक लैब का तामीराती काम 2 साल कबल शुरू किया गया। रवां साल जून में 6 करोड़ 70 लाख की लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाना था, मगर 7 माह गुजर जाने के बाद भी अहम मंसूबा मुकम्मल न हो सका। अब तक फॉरेंसिक लैब की तामीर पर 29 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 37 करोड़ रुपए ताहाल बाकी हैं। गुज़श्ता साल 48 लाख रुपए जारी किए गए। ज़राए के मुताबिक DC ऑफिस की जानिब से फंड के लिए पंजाब सरकार को खत लिख दिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियावाली। सरंडा मोहम्मद पनाह में खुद साख्त महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। कुछ रोज पहले 20 रुपए में मिलने वाला अंडा 35 रुपए का हो गया। एक हफ्ते के दौरान अंडों की कीमत में 180 रुपए फी दर्जन इजाफा। सरंडा मोहम्मद पनाह में नाजायज मुनाफाखोरी का सिलसिला अरूज पर। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। एक हफ्ते के दौरान अंडों की कीमत में 180 रुपए फी दर्जन इजाफा हो गया। शहरों के लिए सस्ती प्रोटीन का हसूल ख्वाब बन चुका। शहरी कहते हैं चंद रोज पहले अंडा 20 रुपए का था, अब 35 रुपए का मिल रहा है। दिहाड़ीदार तबका कैसे जिंदगी गुजारे? अब तो बच्चों को नाश्ते में अंडे खिलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। कुछ दिन पहले मुर्गी का रेट कुछ घट है, लेकिन उनके बाद मुर्गी का रेट बहुत ज्यादा थे गया। उनके बाद अस अंडे थोड़े जे खावन शुरू किए बाले को स्कूल भेजने वास्ते, लेकिन 20 रुपए का जो अंडा मिलता है और को 35 रुपए का मिलता है। तूफान महंगाई का इतनी तूफान आ गए जिंदी हाथ में गरीब की पहुंच को बहुत दूर थी गए। शहरियों का मजीद कहना था कि बहरहाल मुर्गी का गोश्त पहले ही पहुंच से दूर था, अब तो मुर्गी के अंडे भी दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। हर शे कंट्रोल थिया वने भाई अंडे की गाल करें 20 रुपए का मिलता। छोटे जे बालन को स्कूल दे छुड़ेंदे से हुन जरा वो अंडे कन पहले घी महंगा कितने हुन अंडा महंगा करते ने।
प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफातर तक महदूद, जबकि शहरी माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर है। शहरियों ने हुक्कामे वाला से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ हुला में ली रोहित रंडा मोहम्मद पना। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई कम ना हो सकी, सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, अदरक 7 और लहसुन 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। दीगर सब्जियां और फल भी बदस्तूर शहरियों की पहुंच से दूर। मुल्तान इंतजामिया नाजायज मुनाफा खोरों को लगाम ना डाल सकी। सरकारी और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क। अदरक की सरकारी कीमत 560 और लहसुन की 480 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में अदरक 7 और लहसुन 6 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 160, प्याज 116 और टमाटर की 140 रुपए मुकर्रर है। शलजम 120, भिंडी 250, मेथी 130, बैगन 160 और सब्ज धनिया 120 रुपए फी किलो दस्तियाब है। फलों में अंगूर 600, कंधारी अनार 500, खरबूजा 350, काला किलो सेब 300, सिंगाड़ा 250, अमरूद 200, मौसमी 100 और शकरी 80 रुपए किलो, जबकि केला 120 रुपए फी दर्जन फरोख्त। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। सोने की कीमत में कमी होने का सिलसिला जारी। जरगर हजरात के मुताबिक एक हफ्ते में सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 18,000 रुपए तक कमी हुई है। डेरा गाजी खान में एक हफ्ता के दौरान सोने की कीमत में खातर ख्वाह कमी। सुनार हजरात के मुताबिक 24 कैरात सोना की फी तोला कीमत ने 2,90,000 रुपए की हद को छुआ और फिर कम होते होते 2,67,000 रुपए पर आ गया, जबकि 22 कैरात सोना 2,55,000 से कम होकर 2,40,000 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। सोने की कीमत में एक हफ्ता के दौरान मजमूई तौर पर 18,000 रुपए फी तोला कमी हुई है। तो गोल्ड का रेट 2,67,000 रुपए चल रहा है, 267, जो पहले 2,90,000 तक पहुंच गया था। ये 24 कैरेट का रेट है 2 लाख, और 2,44,000 22 कैरेट का रेट है इस वक्त। पहले 2,55 था, तो काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से कस्टमर खुश हैं। सुनार हजरात का कहना था कि अमेरिका में इलेक्शन के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस्तेहकाम आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें बंद करने की बात की है। इंटरनेशनल मार्केट में इस्तेहकाम की वजह से सोना सस्ता हो रहा है। सोने के जेवरात बनाने वालों ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में सोना मजीद सस्ता हो सकता है। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।